Hello class, welcome back. Welcome back to your computer classes. So kids, in our last class we have read up to hardware, है ना? We have completed our chapter 2, that is hardware, and in that chapter we have read about different hardwares and different component of a computer that we can touch. There we have also read about storage devices, in which I have told you about I have told you about CD, DVD, pen drive, hard disk, hard drives, etc. है ना? So this much तो we have completed. Now today we are going to start our next chapter, that is software, computer software. The next chapter that we are going to start is software. Okay. Next chapter, that is software. Okay. So in the first chapter of computer, that is basic of computer, we have read that in that chapter we have read that computer's part has been divided into two broad categories, that is hardware and the software. We have read that computer parts has been divided into two broad categories, hardware and the software. So in the previous chapter we have read about hardware. We have read that all the physical part of the computer that we can touch, are called hardware, है ना? Now in the next chapter, in this chapter we are going to read about software. So what is software? In this chapter we are going to read what is software, type of software, and different application software and system software. Okay, this much we have to cover in this chapter. Now, what is software? So first question arises, what is software? So software is a set of instructions that tells the computer to do a particular task. What is software? Software is a set of instructions. Software is a set of instructions that tells computer how to do a particular task. ठीक है? What does it mean? That software is a set of instruction means क्या? सॉफ्टवेयर क्या? एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर क्या? ये पूरा इंस्ट्रक्शंस है. ये कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू. दिस टेल्स कंप्यूटर हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क एंड व्हाट टू डू. कंप्यूटर को बताता है कि भाई क्या काम करना है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू. हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क कैसे करते हैं. सो देखो आज के कंप्यूटर्स क्या है, नाउअडेज वी आर यूजिंग मॉडर्न कंप्यूटर. सो दीज कंप्यूटर, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एट अ टाइम वी कैन गिव देम लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. एट अ टाइम वी कैन गिव देम लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. जैसे मैम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ओपन चैप्टर 2 पेज नंबर 4 लाइन नंबर 3, इस तरह करके. तो ये क्या है, 3 to 4 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम ना, कि भाई बुक में पेज नंबर 4 चैप्टर 2 लाइन नंबर 3, इतना सारे इंस्ट्रक्शन मैम ने दिया. कंप्यूटर को भी हम क्या करते हैं, एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं. जैसे हमने वीडियो गेम भी ऑन कर दिया, म्यूजिक भी प्ले कर दिया, है ना. दो चीजें हम साथ साथ कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं, दीज ऑल आर द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन. So according to your book, software is a set of instructions that tells the computer how to do a particular task. For example, you draw and color beautiful pictures in MS Paint of the computer. Here the computer is an example of hardware and MS Paint is that of a software. You can touch the hardware but you cannot touch the software. देखो सबसे अच्छा example क्या दिया है यहाँ पे, example is given of MS Paint. What about it? So it is written here that you can draw and color various type of picture on MS Paint. MS Paint पे आप अलग अलग पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो. तो आप
आपने कंप्यूटर पे MS पेंट ओपन किया, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो एज इन होल एक हार्डवेयर है, बट MS पेंट, व्हाट इज MS पेंट? MS पेंट इज सॉफ्टवेयर। MS पेंट क्या है भाई? MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है। MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है। दिस मच यू अंडरस्टैंड ना? ओके, सो वी कैन टच हार्डवेयर बट वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर को तो टच कर सकते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया, बट हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर। नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। Next that we are going to read is type of software. So software, there are two main types of software. Software कितने टाइप के हो गए भाई? There are two main type of software. Application software and system software. There are two main type of software. Application software and system software. Two type के software हुए. Application and system. Application software है, system software, दो तरह के सॉफ्टवेयर हुए. Now let us read about. So first we have to read about application software. So the software that perform specific task for the user are known as application software. The software that perform specific task for the user are known as application software. जैसे आप लोग भी तो फोन में एप्स डाउनलोड करते हो ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स, लाइक यू डाउनलोड मैसेजिंग एप्स, मैसेंजर्स ऐप आप डाउनलोड करते हो ना, जैसे फेसबुक हो गए, ये तो सोशल मीडिया एप्स हो गए, व्हाट्सएप एक मैसेंजर ऐप है। तो इस तरह के जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करता है कंप्यूटर में, वो एक स्पेसिफिक एक काम करता है। जैसे व्हाट्सएप है तो वो एक, व्हाट्सएप से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप की हेल्प से हम क्या करते हैं, वी कैन चैट, वी कैन ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या हुआ, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। ये तो आपने सुना होगा ना कि भाई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, नाउ अगर मुझे पैसे पे करने, नाउ इफ आई वांट टू पे समवन सम अमाउंट, अगर मुझे किसी को कुछ अमाउंट पे करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ अमाउंट पे करना है तो उसके लिए मुझे फिर गूगल पे, पेटीएम, इस तरह करके भीम, SBI, इस तरह करके अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर मुझे डाउनलोड करने होंगे। वीडियो कॉल के लिए डुओ हो गया, जूम हो गया। सो व्हाट आर these are different type of application. Application software means the software that perform only specific function. Application software means that the software that perform only specific function. Like with the help of Duo, we can do video call. With the help of Google Pay or GPay, we can pay money, we can buy things. With the help of Swiggy, we can order food. With the help of Zomato, we can order food. ठीक है, IRCTC के जो एप्स होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बुक अवर ट्रेन टिकट्स एंड एक्सेट्रा. सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड of the user, there are different type of system application software. Application software, what they do? Application software, they perform specific task. They perform specific task. है ना, ये यूजर पे डिपेंड करता है और ये एक कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं. जैसे MS पेंट, आपके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है भाई, MS पेंट. MS पेंट क्या है, एक तरह का MS पेंट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वाई? क्योंकि MS पेंट से हम किसी से चैट नहीं कर सकते. MS पेंट की हेल्प से वी कैन नॉट चैट विथ एनीवन. MS पेंट की हेल्प से वी कैन ओनली ड्रॉ थिंग्स, ड्रॉ कार्ड्स, है ना. These software help you in doing some specific tasks or task of work. For example, we can use MS Paint to make a drawing. We can use MS Paint to make a drawing, but we cannot do calculation using MS Paint. See, application software फिर से समझते हैं. Application software means ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिससे हम एक पर्टिकुलर टास्क कर पाए. जैसे MS Paint से हम we can draw, but we cannot do calculation on MS Paint. We have to use calculator software to calculate. Now we have to use calculator software to
कैलकुलेट। नाउ अब कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर पे वी कैनॉट सी टाइम, वी कैनॉट स्टार्ट द टाइमर। अब उसके लिए हमें क्लॉक, स्टॉप वॉच एप्स डाउनलोड करने होंगे, है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो जिनसे हमें स्पेसिफिक टास्क करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिनसे हमें स्पेसिफिक टास्क करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर, फर्स्ट इज MS Word. These are some very common application software. Next is Microsoft Excel. MS or Microsoft you can say. Next is Microsoft Excel. Microsoft Excel. Next is MS Paint. And last but not the least, logo. ओके, तो देखो ये क्या है, अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया कि ये कोई स्पेसिफिक काम ही कर सकते हैं। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला हमारे पास क्या है भाई? MS Word। वी आर हैविंग MS Word। MS Word ये हम सब, आपने नाम सुना होगा। जैसे आप जब क्वेश्चन पेपर्स, आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो क्वेश्चन पेपर हम MS Word पे बनाते हैं, MS Word पे या नोटपैड पे भी मेक, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विथ ईज एंड एफिशिएंसी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प यू टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट विथ ईज एंड एफिशिएंसी। क्या होता है? आसानी से हम इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। मैम अगर आपसे बोलें कि आप राइट 10 लाइन अबाउट योर स्कूल, सो व्हाट यू विल डू, आप वहाँ पे MS वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ईजिली आप टाइप करके 10 लाइन्स अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हो। प्लस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है? तरह तरह के आपको फीचर्स देता है। जैसे आप उसमें क्या कर सकते हो? यू कैन ऐड एनिमेशंस ऑल्सो। यस, यू कैन ऐड एनिमेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यू कैन ऐड क्लिप आर्ट, यू कैन कलर द फॉन्ट, जो भी फॉन्ट होता है, यू कैन फॉन्ट स्टाइल, जिस तरह हम लिखते हैं उसको आप कई तरीके से लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे जो टेम्पलेट्स भी होते हैं, टेम्पलेट्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब ये आपकी हेल्प करते हैं। पहले से ही कुछ मैसेजेस या कुछ लेटर्स लिखे होंगे और आपको बस वहाँ उसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह फिल करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस में हमारी हेल्प करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारी हेल्प करता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में विथ ईज एंड एफिशिएंसी, बहुत ही आसानी के साथ, ईज के साथ एंड एफिशिएंसी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ हम अपने बर्थडे कार्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हमें बर्थडे में कितने, हम गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वर्ड में हम क्या, वर्ड में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Microsoft Excel help you to perform calculation and store the data in a tabular format. Now देखो हर सारी चीजें हम वर्ड्स में नहीं लिखते, कुछ चीजें हमें टेबल के फॉर्म में भी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके रिजल्ट हो गए, अब आपका रिजल्ट तो टेबुलर फॉर्म में होता है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है? वो हमारी हेल्प करता है टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड इट हेल्प अस टू स्टोर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। वो क्या करता है? हमारी हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने में। किस फॉर्म में भाई? टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। देखो माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, हम एक अच्छा सा, अगर हमने एक टेबल बना दिया, नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक चीज और कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दैट ऑन ग्राफिकल फॉर्मेट ऑल्सो। उसको हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट, वी कैन रिप्रेजेंट दैट ऑन ग्राफ्स ऑल्सो, वी कैन रिप्रेजेंट दैट ऑन ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ हमने बना दिया, पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट कर दिया। कैलकुलेशन करने में भी क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ना। ओके, सो दिस इज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट इज MS पेंट। ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया MS पेंट का। MS पेंट हेल्प यू टू वर्क विथ ग्राफिक्स। यू कैन ड्रॉ एंड पेंट विद दिस सॉफ्टवेयर। MS पेंट क्या है भाई? MS पेंट हेल्प करता है हमारे ग्राफिक्स के साथ। नाउ दिस वी कैन पेंट एंड ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अभी ये सॉफ्टवेयर हम आगे पढ़ेंगे भी। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम
पेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चीजें हम पेंट कर सकते हैं, प्लस हम कार्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, और हम डिफरेंट ओकेजन के लिए भी ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम MS पेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लोगो। लोगो इज लैंग्वेज ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, is a software program used to draw different shapes and figure using different command. It is used to draw different shapes and figure using different commands. You can also use it to do simple calculation. अच्छा ना, logo we can also use logo for simple calculation. logo पे भी हम simple calculation हम कर सकते हैं। logo एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम, पता है उसमें क्या होता है, logo में ना एक ऐसा टर्टल होता है, छोटा सा टर्टल होता है, इस तरह से एक छोटा सा टर्टल होता है। अब ना ये टर्टल हम ऐसे मूव करके डिफरेंट सिंपल शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं लोगो पे, ठीक है। तो लोगो इज बेसिकली ग्राफिक ओरिएंटेड, इसमें हम अलग अलग तरह के ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट अस रिवाइज अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जो ये सारे काम नहीं कर सकते, ये कुछ स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, कुछ काम ये कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई डुओ हो गया, या डुओ हो गया, तो डुओ की हेल्प से वी कैन डू वीडियो कॉल। वीडियो कॉल हम डुओ की हेल्प से कर सकते हैं, बट डुओ की हेल्प से वी कैन नॉट पे मनी। अगर हमें ट्रांसफर करना है पैसे को, तो डुओ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं पे कर सकते, है ना। नाउ नेक्स्ट इज पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, भीम SBI हो गया। अब इनकी मदद से वी कैन पे कैश, इनकी मदद से व्हाट वी कैन डू, इनकी मदद से हम पैसे पे कर सकते हैं, बट इनकी मदद से हम अब चैटिंग नहीं कर सकते, वीडियो कॉल नहीं कर सकते। अच्छा देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल अमेजोन में हम क्या करते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अमेजोन पे हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। अमेजोन पे हम शॉपिंग करते हैं, बट अमेजोन की हेल्प से हम चैटिंग नहीं कर सकते, हम चैटिंग नहीं कर सकते, वीडियो कॉल नहीं कर सकते, ये सब हम अमेजोन की हेल्प से नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? गुड। ना जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है सिस्को वेबएक्स पे, अब भाई सिस्को वेबएक्स से मैं पैसे थोड़ी ना पे कर सकती हूँ किसी को, सिस्को वेबएक्स से मैं पैसे नहीं पे कर सकती। उसके लिए सिस्को वेबएक्स, अब पैसे पे करने के लिए मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के लिए। तरह तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि अब हमने अभी पढ़ा MS वर्ड, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ, we can write letters, we can send emails with the help of, we can write poems there। MS Word पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल की मदद से we can do simple calculation। लोगो पे we can draw graphics, है ना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। MS Paint भी है, MS Paint की मदद से what we can do, with the help of MS Paint we can draw with the help of this software। MS Paint की मदद से we can draw different type of, MS Paint की मदद से we can draw different types of what? We can draw different types of things there। We can make cards also, ठीक है। तो ये हो गया हमारा about application software। Now next we have to read about system software। Next we have to read about system software। Okay। Next is सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या। तो देखो ये तो कुछ हद तक नाम से ही क्लियर हो रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप जब कोई एक नया फोन खरीदते हो, व्हेनेवर यू बाय अ न्यू फोन, तो उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, सिस्को वेबएक्स, जूम, ये सब एप्लीकेशंस तो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं, लेकिन क्या हमें कैमरा डाउनलोड करना पड़ता है? सोचो, क्या हम कोई फोन खरीदे, अच्छा सा फोन मैंने खरीदा, अब क्या उसमें कैमरा मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से? थिंक अबाउट इट, टेल मी, क्या मुझे उसमें कैमरा या मुझे उसमें
कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये सब चीजें उसमें मुझे डाउनलोड करनी पड़ेंगी? टेल मी। नो, ये सब चीजें उसमें डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। ये सब चीजें उस फोन में क्या होती, इनबिल्ट होती। ये सब चीजें उस फोन में पहले से ही क्या होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, पहले से ही उस फोन में ये सारी चीजें होती हैं। नाउ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? अकॉर्डिंग टू योर बुक, system software is a type of software that controls and manages the overall activities of the computer system. What it does? System software, it controls and manage, है ना, it control and it manage, इतना काम तो ये करता है। इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। Therefore, a system software is like a manager. Next is, it's like a manager. Of a computer system, it operates from behind the scene and ensures that your computer system functions properly. It also runs the application software. Operating system is a part of system software. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी देखो आप भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ओएस। ठीक है, ओके। नाउ तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने देखा कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में सारी जो एक्टिविटी होती है, सारी की सारी एक्टिविटी कौन मैनेज करता है? सारी एक्टिविटी एक कंप्यूटर पे मैनेज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंट्रोल भी करता है, ये मैनेज भी करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए वी कॉल इट मैनेजर। इट एक्ट एज अ बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या होता है? कोई मूवी बनती है, ठीक है, अगर कोई मूवी बन रही है, ठीक है, अब भाई उस मूवी में ऐसा तो है नहीं कि खाली एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, है ना। आप मूवी देखते हो, उसमें एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है? ये तो हमें स्क्रीन पे सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस दिखते हैं, बट बिहाइंड द सीन वहाँ पे कौन कौन से लोग होते हैं? बिहाइंड द सीन वहाँ पे मेकअप स्टाफ होता है, कोरियोग्राफर्स होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टंटमैन, इतने तरह के लोग होते हैं। तो वो लोग बिहाइंड द सीन काम करते हैं। बिहाइंड द सीन मीन्स वो कभी भी इन फ्रंट, कैमरे के फ्रंट में नहीं आते। दे नेवर कम इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, दे ऑलवेज वर्क फ्रॉम द बिहाइंड, है ना। सिमिलरली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करते हैं। ये बिहाइंड द सीन होते हैं। हमें लगता नहीं है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा हमारे स्क्रीन पे कुछ होता हो, हमारे लैपटॉप में कुछ होता होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। It operates from the behind the scene and ensure that your computer system function properly, and they only ensure that your computer system क्या work properly। ठीक है, now next is it also run the application system। application software जो होते हैं, जैसे अभी हमने application software के बारे में पढ़ा, तो भाई application software भी system software ही रन करते हैं। next is ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो होते हैं वो एक पार्ट होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अभी हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay. Operating system is a software which acts as a bridge between the user and the computer system। ठीक है भाई, अब चलो ये समझते हैं। देखो, अब इधर हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इधर हो गया कंप्यूटर सिस्टम, इधर हो गया यूजर, कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर। अब इसके बीच में ये एक ब्रिज। अब इस ब्रिज का काम कौन करता है? इस ब्रिज का काम करता है
ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ब्रिज का काम करता है ओएस, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वेट, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर। अब इनके बीच में एक ब्रिज का काम कौन करता है? इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है ओएस, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। दिस मच यू अंडरस्टैंड? ओके, now next is operating system is a software which acts as a bridge between the user and computer system. It is the first software which has to be installed on the computer. तो operating system क्या होता है? ये पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए। उसके वर्क करने के लिए पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड होना चाहिए दैट शुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। नाउ a computer is useless without the operating system. For example, if you have a car which has petrol engine wheel, but if there is no driver to drive the car cannot move on its own from one place to another, है ना? So बहुत अच्छा example दिया, it is written there. Suppose if you are having a car and in that car you are having all the things, you are having petrol also, you are having engine also, steering wheel also, but driver is missing, then now who will drive the car? If driver is missing from the car, now who will drive the car? कार को कौन ड्राइव करेगा? So that work, कार को कौन ड्राइव करेगा? तो जो ड्राइवर काम करता है वही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम करता है। ठीक है, लाइक कार कैनॉट मूव ऑन इट्स ओन, सिमिलरली विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन ऑल्सो unable to move on its own. The car cannot move on its own from one place to another. The driver acts as an operating system from a car. Driver किस तरह का act करता है? Driver acts as a operating system for a car. So an operating system is must to work with computer. So an operating system is must to work with computer. ठीक है? And this is clear. So a computer is useless without the operating system. A computer is useless without the operating system. एग्जाम्पल में क्या था? कार। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सारे एप्लीकेशन हो, सारे सॉफ्टवेयर हो, बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बट इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ कार, फिर क्या होगा भाई? कार कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन। सो कंप्यूटर कैन ऑल्सो कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन इफ इट डजंट हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर भी काम नहीं कर पाएगा। So kids, today we have completed up to operating system. Now in our next class we will read about functions of operating system. Okay? चलो, bye bye.